Okay, so when you will access the recordings later, you might have a situation that chapter 2 का एक छोटा सा portion, छोटा तो क्या मेजर ही बोलूंगा, major portion you would not get into the recording. Okay, so we did chapter 2 last lecture, but after doing questions of chapter 1 and scenario based questions, the recording could not get further. There was some glitch, I think there was some miss, because of which the recording couldn't go further. So I'm apologies for that. I don't know, we'll try to see that how we can work it up, but seems to be difficult because इससे पहले पुराना syllabus था, नए syllabus के हिसाब से recording was happening for the first time. Okay, and there's still a black patch. Yeah. Recording stopped. Recording in progress. Okay, so we continue our conversation on chapter number 2. Chapter number 2 mein last our conversation was completed on Porter 5 forces. If I can just give you a small brief on Porter 5 forces, the strategy of a company is not based on only one thing, but a combination of 5 forces combined together. Rivals, new entrants, suppliers, substitutes and buyers. Hello, ऐसा कुछ याद आ रहा है? Give me a yes or no. So strategies when prepared, so we need to make sure that the Porter 5 forces is in action. So we understood rivals, new entrants, suppliers, substitutes and buyers. Correct? So here we came up and we stopped our conversation. So few things are still left in chapter 2. That is first, next is the concept of experience curve. Now, what is experience curve, sir? Sir, the efficiency increase gained by repetitive productive work. I repeat, the efficiency increase gained by repetitive productive work is called experience curve. Experience curve is similar to learning curve, and it helps you reduce the cost, improve the quality, maintain the level of output at a lower price with lesser wastages. So it comes with a variety of factors such as learning effects, economies of scale, product redesign and टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स. अब मैं एक लाइन बोलता हूं, आप मुझे बताना, दो बार बोलूंगा, कौन सी वाली सही है, फर्स्ट या सेकंड. Experience curve becomes the basis which will help you to develop core competence and lead to a competitive advantage. या फिर सेकेंड वाली core competence will lead to experience curve and which will be the basis for competitive advantage. First one, second one. Yes, the answer is first one. आप एक्सपीरियंस कर्व रखते हो जिसके कारण आप एक्सपीरियंस कर्व होने के कारण आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हो. तो आपकी काबिलियत आपका एक्सपीरियंस कर्व है जो आपकी कोर कॉम्पिटेंस बनेगा और कोर कॉम्पिटेंस होने के कारण आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा. करेक्ट, ये ध्यान रखना. So experience curve. Today, can I? Who has got the experience curve? Ola scooters or Bajaj? And because of that, what Bajaj has done, Bajaj has launched this two-wheeler, electric two-wheeler Chetak right now. So it has given all the features which a scooter wants and has also given an electric concept. Whereas Ola is learning, correct? So this is how things matter. So experience curve can become a basis for generating a core competence which will ultimately lead to competitive advantage. Okay. So next concept is value creation. Value creation is what? Sir, if you have read something called consumer surplus in economics in CA Foundation, so consumer surplus is what I am willing to pay minus what I have to actually pay. The difference between the two is called consumer surplus. Yes or no? Hello. But is consumer surplus and value creation same or different? Sir, it is different. Value creation means what value you have added.
So it starts from what? The value which the customer perceives and the amount of cost which you have incurred. For example, I think a particular product is worth 1,000 rupees and I am ready to pay 1,000, but the MRP is 800. So 1,000 minus 800 is what? Consumer surplus or value creation? Thousand minus 800 is what? Value creation or consumer surplus? Sir, that's consumer surplus. Now that 1,000 rupee thing got manufactured in 300 rupees. So 700 is what? Correct. That is value creation. So the moment I say the word value creation, I am trying to bring a bigger word. And nowadays, value creation is only not seen in the terms of turnover or profit. The value which you create for your stakeholders. कौन सा word बड़ा है? Stakeholder, shareholder. Which is a bigger word? Stakeholder, shareholder. करेक्ट. मेरे सामने स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसको जरा ध्यान से पढ़ो. पढ़ के देखो, डायग्राम तो क्लियर हो ही गया होगा. पढ़ के बताओ, डन बोलो तो आगे जाऊंगा मैं. डन. अभी जोमेटो के जो सीईओ हैं दीपिंदर गोयल, ही started working as a delivery boy for 2 days. He went like a delivery boy to various places to pick the parcel and deliver it to the customer. And then he realized few problems कि delivery वालों का partner का problem क्या है. He spoke to few of the mall fellows कि उनका आने जाने का रास्ता, उनकी waiting conditions थोड़ी सी improve हो. So is it going to add to profit or is it going to add value to business? सर इट इज नॉट गोइंग टू ऐड प्रॉफिट, इट इज गोइंग टू ऐड वैल्यू टू बिजनेस. एंड स्टेक होल्डर्स में कौन है? डिलीवरी पार्टनर्स. जो डिलीवरी पार्टनर्स उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी वैल्यू चेन का. अगर मैं बोलूं ओयो के कॉन्टेक्स्ट में डिलीवरी पार्टनर्स जो होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी में आएंगे या सपोर्ट एक्टिविटी में आएंगे? ओयो का अपना जोमेटो का काम क्या है? जोमेटो का काम है खाना लेके खाना देना. तो प्राइमरी एक्टिविटी होगी ना. सपोर्ट कैसे होगी? जोमेटो का बिजनेस क्या है? रेस्टोरेंट से खाना आपके घर पहुंचाना, यही है ना. तो कौन सी एक्टिविटी होगी प्राइमरी? उसमें कौन सी? इनबाउंड, ऑपरेशंस, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल्स या सर्विसेज? बताओ. पिकिंग द ऑर्डर एंड डिलीवरिंग इट टू द कस्टमर. सारे के सारे बच्चे गलत जवाब दे रहे हो मेरे को. वो ऑपरेशंस में आएगा. सर्विसेज में तो ये होता है कि एड ऑन बेनिफिट्स आप क्या दे रहे हो उनको. आप सब क्या करते हो? कॉन्सेप्ट रट लेते हो, रटने के बाद उसे अप्लाई नहीं करते हो. गेटिंग इनटू द मॉल इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. कलेक्टिंग द ऑर्डर एंड गोइंग आउट आउटबाउंड. और पूरा रास्ता जो गाड़ी चला के गए वो आपका ऑपरेशंस. और फिर डिलीवर करने के बाद नेक्स्ट जगह पे जाना आउटबाउंड. सो इनबाउंड इज गेटिंग टू द डिलीवरी लोकेशन. पिकिंग द फूड एंड डिलीवरिंग टू द कस्टमर इज ऑपरेशंस.
और इसके अंदर आपको टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है ऐप के थ्रू, गूगल मैप के थ्रू, हाँ या ना? बनाने चाहिए ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर को, मजा आएगा। तुम सब बोलोगे आप तो दूर ही रहना जरा पेपर बनाने वालों से। तो वो तो तुमको 4 महीने देता, अभी कायदे से तो तुम्हारी एग्जाम हो जानी चाहिए थी 8 दिन बाद। नवंबर का जनवरी मिला हुआ है, फिर भी रो रहे हो, डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। किसी जरूरत नहीं इतना लोड लेने की। जी, करेक्ट। अब अपन बात करते हैं मार्केट एंड कस्टमर की। मार्केट एंड कस्टमर के अंदर 4 प्रकार के ओरिएंटेशंस होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग, जहां पर आप प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हो। एक होता है प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग, जब आप उस प्रोसेस को बताते हो कि देखो कितनी मेहनत से ये चीज बनती है। एक होता है सेल्स ओरिएंटेड मार्केटिंग, जब आप एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग करोगे तो लोगों के मन में अरमान जगा दोगे, कि सेल्स ओरिएंटेड मार्केटिंग। और एक कस्टमर मार्केटिंग ओरिएंटेड मार्केटिंग होती है, जिसमें आप कस्टमर की नीड्स को समझ के उस हिसाब से चेंजेस करके देते हो। नाउ यू टेल मी वन थिंग, जोमेटो हैज डन अ वेरी गुड थिंग नाउ। अगर आप 4 दोस्त मिलके खाना ऑर्डर करना चाहते हो तो अपना फोन 4 जगह घुमाने की जरूरत नहीं है। अब एक ही ऑर्डर के अंदर सब जने साथ में जोड़ के ग्रुप बनाकर अपना ऑर्डर कर सकते हो। सो व्हाट इज दिस, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड या कस्टमर ओरिएंटेड? बताओ। हम्म, कस्टमर ओरिएंटेड, वेरी गुड। अच्छा, मैं न्यूज़पेपर में ऐड देता हूँ, उसके रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, सारा अली खान आके ऐड कर रहे हैं, होर्डिंग लगे हुए, बैनर लगे हुए, वो कौन सी ऐड है? सेल्स ओरिएंटेड मार्केटिंग है, वेरी गुड। हम रसीले आमों को चुनते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से प्रोसेस करते हैं, बड़े शान सोच समझ के हम आपको पैक करके उस चीज को ताज़ा ताज़ा पहुंचाते हैं। प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग, वेरी गुड। आपके हाथ में जो है वो एक ऐसी घड़ी है जो अपने आप में विशेष है। गॉट इट, वेरी गुड। सर, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। सर, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर अपन जब बात करते हैं तो अपने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझने के लिए ये क्वेश्चन है, शायद इस एग्जाम में इससे पहले पूछा भी गया है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? नंबर वन, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। सेकेंड, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स। डिटरमाइन their strength and weakness, determine their weakness, strength and weakness, and then put all the information together. आपको याद होगा क्लास में मैंने आपको यूरेका फोर्ब्स वाली एक केस स्टडी कराई थी। मैंने कहा था एक फिल्टर मार्केट समझ लो। तो अगर आप यूरेका फोर्ब्स हो तो आपका कॉम्पिटिटर है कैंट आरो, लिव प्योर। डू यू रिमेंबर दिस? आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड देम, डिटरमाइन देयर स्ट्रेंथ, डिटरमाइन देयर वीकनेस, एंड व्हाट टू डू विद दिस इंफॉर्मेशन। मैंने एक ऐसा डब्ल्यू बनाया हुआ था बड़ा सा। हु आर दे, what are their products and services, what is their strength, what is their weakness, and what to do with this information, 5 W's। याद आ गया? Got it?
इसके बाद इसी की कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है की सक्सेस फैक्टर. सर की सक्सेस फैक्टर आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफाइन योर प्रोडक्ट दैट दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू सेल बेटर देन अदर्स. This becomes the basis of you selecting one point over the other. So key success factor देखिए लिखा है ना. On what basis do customers choose between the competing brand of sellers? Number one, what product attributes are crucial to sales? What resources and competitive capabilities does a seller need to have to be competitively successful? It can be people, it can be product quality, quantity, cost, and this kind of a success level should not be one time success. It should be a sustainable competitive advantage. Sustainable मतलब one time या लगातार. जल्दी बताओ. So, लगातार. Very good. So key success factors. So this KSF can be what? Your product, your service, your costing, your features, or can be any one of the features. Yes, sir. Any one of them. यहाँ आके चैप्टर 2 हो जाता है कंप्लीट आपका मेरा. ओके. सो दैट चैप्टर 2 का स्टडी मटेरियल एमसीक्यू जरा फटाफट ओपन ओपन करें. करते चले. And let me open up the study material. चलिए बताइए. KSF स्टैंड्स फॉर सर बहुत सिंपल है. की सक्सेस फैक्टर अभी बात करी. कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके पास होता है, उसे अप्लाई करना कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है. पूरे कंपटीशन की स्टडी करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लगेगा. स्टडी करने के बाद आप जो स्ट्रैटेजी बनाओगे वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी होगी, तो वो पहले नहीं लगेगी. कॉम्पिटिटिव एक्यूमेन होने से कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस होता है क्या? वापस से याद करो. अभी 2 स्लाइड पहले लेके चला था मैं. कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है ये बताओ. ये रहा. ये रहा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. तो ये सब क्या है? Ashish, I am not answering your questions. One more stupid question like this and I am taking you out of the class round now. It's as simple as that. My warning is not every lecture specific for the whole revision. Next time don't ask me these questions. सर इतना सब कुछ दिमाग लगाना क्या होता है बताएं. कॉम्पिटिटिव एक्यूमेन नहीं, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस होता है सर. इतना दिमाग लगाना कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है.
सी दिस इज हाउ यू विल गेट स्टक. आपको बता रहा हूं, इस प्रकार आप रटने से नहीं काम होगा. यू हैव टू रीड मल्टीपल टाइम्स, तब जाकर आप इनसे दोस्ती कर पाओगे. एंड अगर आपको इस लैंग्वेज से अभी भी है तो इसका मतलब आपने क्लासेस के दौरान मैंने स्पेसिफिकली पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ाया था आपको, इसीलिए पढ़ाया था कि आप इन चीजों को समझो. सर द टर्म पेस्ले is used to describe a framework for analyzing which environment, micro, macro या both micro, macro. Sir, political, economical, socio-technological, legal, environmental, macro environment, sir. Attractiveness of firms while conducting industry analysis should be seen in what terms? Attractiveness is something which is universal for all या person to person या देखने के angle पे, it's based on the point of view. Sir, its point of view. So attractiveness will be what? Relative, absolute, comparative, या all of the above? Sir, it will be relative. What is not one of the Michael Porter's 5 competitive forces? Answer is 5C, sir. Unions. Which of the following constitute demographic environment? 6B, sir. All are elements of macro environment except competitors. These are micro components, sir. The emphasis on product design is very high, the intensity of competition is low, and the market growth rate is low. In which stage of the industry life cycle? एट बी सर. ये सी वाला कौन था? मुस्कान गलत आंसर. अक्षत सुगंधी गलत आंसर. कंपटीशन लो है. अरे ऐसा बना के देख ले मेरे भाई. इंट्रोडक्टरी ग्रोथ, मैच्योरिटी डिक्लाइन. प्रोडक्ट डिजाइन इज वेरी हाई, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज लो. यही होगी ना इंट्रोडक्टरी स्टेज. वाह. आइए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे या पहले ट्राई करोगे खुद? करे हैं नहीं करे हैं? मतलब पहले ट्राई करोगे या अभी क्लास में डायरेक्टली करना है, ये पूछ रहा हूं. मतलब माय क्वेश्चन इज दिस. पहले ट्राई करोगे? ठीक है, तो क्या करूं? अभी नहीं कराऊं, फिर कल कराऊं? आगे फिर अब नया चैप्टर चालू करूं? थर्ड वाला एमसीक्यू बता दे तो मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एक बार तुम करो क्या आओगे, फिर मेरे से करवाओगे. ठीक है. थर्ड वाले एमसीक्यू में क्या डाउट आया बेटा? पेस्टलेस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशो टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल. तो ये सारे फैक्टर्स जितने तुम पे अफेक्ट हो रहे हैं उतना दुनिया पे दूसरे कंप्यूटर पे भी अफेक्ट हो रहे हैं. सो दीज विल बी कॉल्ड एज मैक्रो फैक्टर्स. ओके मुस्कान, क्लियर? So we will go to chapter 3 today.
Chapter 1 basically talks about what? Sir, Chapter 1 talks about strategic management introduction. Chapter 2 spoke about external environment analysis. Now we will go into internal environment analysis. The moment you go into the internal environment analysis, you are going to look to the bigger market or your own capabilities. बताएं. Sir, we look into our own capabilities, sir. Correct? So now when we go into chapter 3, we'll be more of understanding things from the perspective of our area. Okay. First of all, we understand the word key stakeholders. Who are stakeholders? Sir, stakeholders are the people who are directly or indirectly affected by all the actions of the organization. It includes shareholder, but also includes people other than shareholder also. Local authority, government, employees, trade union, competitor, customer, shareholder, suppliers. Hello. आपको याद होगा तो एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म नोट करवाया था मैंने आपको. एलजी टीवी पर ईटीसी चैनल सुनते सुनाते हैं स्टेक होल्डर्स. करेक्ट. तो की स्टेक होल्डर्स को समझने के साथ साथ वो अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं. दिस मेंडलोज मैट्रिक्स इज न्यू. हाँ, इससे पहले वाले सिलेबस में ये था नहीं. सो मेंडलोज मैट्रिक्स कम्स आउट टू बी द न्यू कॉन्सेप्ट. सो मेंडलोज मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स एंड ऑल्सो पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स. तो 3 नाम हो गए एक ही चीज के. तो एमसीक्यू बन गया 1 2 3. करेक्ट. A thing to remember is that all the stakeholders may seem to have lots of power as well as interest. तो अब आपको क्या पावर और इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा. सो यू विल हैव अ 4 सिचुएशन. अगर मैं पावर रखता हूं हाई एंड लो और इंटरेस्ट रखता हूं हाई एंड लो, तो ऐसी 4 सिचुएशन बन जाएगी. हाई पावर हाई इंटरेस्ट, हाई पावर लो इंटरेस्ट, लो पावर हाई इंटरेस्ट, लो पावर लो इंटरेस्ट. अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको सबसे ज्यादा कौन से स्टेक होल्डर का ध्यान रखना चाहिए? एक का रखना है या सबका रखना है? पहली बात तो सर सबका रखना है. बट किसी के साथ दिन भर बातचीत करके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किसके साथ होना है? जिसका इंटरेस्ट लो है या जिसका इंटरेस्ट हाई है? ये बताओ. और पावर जिसका हाई है उसका भी ध्यान रखना है कि नहीं रखना? अगर हाई पावर हाई इंटरेस्ट है तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको? हाई पावर हाई इंटरेस्ट को. अच्छा, ये हाई पावर हाई इंटरेस्ट वाले कौन से लोग होंगे? एम्प्लॉयज होंगे, कस्टमर्स होंगे या बोर्ड वाले होंगे? सर बोर्ड वाले होंगे. करेक्ट. आइए देखते हैं जरा. हाई पावर हाई इंटरेस्ट, लो पावर लो इंटरेस्ट, ऐसी 4 कैपेबिलिटीज बनाई उन्होंने.
सो की प्लेयर्स में ये कौन से हो गए? हाई पावर, हाई इंटरेस्ट, हाई पावर, लो इंटरेस्ट, लो पावर, हाई इंटरेस्ट, लो पावर, सॉरी, लो पावर, लो इंटरेस्ट एंड लो पावर, हाई इंटरेस्ट. तो की प्लेयर जो रहते हैं उनको आपको बहुत क्लोजली मैनेज करना पड़ता है, वो डिसीजन मेकिंग में आपके साथ रहते हैं और उनके साथ रेगुलर आपकी बातचीत होती है, बराबर. शेयर होल्डर्स आपकी डे टू डे डिसीजन मेकिंग में होते हैं क्या? लेकिन अगर 26% शेयर होल्डर जो कि रोज इंटरफेयर नहीं करते हैं, अब कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, आई एम गोइंग टू चेक दिस, 26% शेयर होल्डर इकट्ठे हो जाएं, रोज इंटरेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने देंगे या नहीं होने देंगे? तो यू हैव टू कीप देम हैप्पी और कीप देम सेटिस्फाइड. People who have low power and have low interest, what you should do? You should ignore them or keep them only informed. आ गया? अब इसी को इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे देखो. ये स्लाइड मेरे सामने जरा आराम से पढ़ो, शांति से. पहली है कीप सेटिस्फाइड, हाई पावर, लो इंटरेस्ट, हाई पावर, हाई इंटरेस्ट, लो पावर, लो इंटरेस्ट, लो पावर, हाई इंटरेस्ट. Banks, government, customer, highly powerful people, but usually not interested in you unless you create something wrong for them. बराबर. Yes or no? Second, sir, these are board of directors, decision makers. अच्छा, आपके यहाँ पे कोई कस्टमर कंप्लेन आ जाए, आपके यहाँ पर मीडिया हाउस का अट्रैक्शन आएगा कब? जब मीडिया हाउस जनरली आपके पीछे नहीं लगेगा, लेकिन आप कुछ ऐसा उल्टा सीधा करोगे तो मीडिया हाउस पीछे ढूंढ ढूंढ के आपके पास आ जाएगा कि क्या हुआ क्या हुआ, आप हमें बताओ. यस और नो?
डन. हेलो. मेरे जैसा कोई टीचर हो तो इसके अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन इस तरह से बना सकता है वो. देखो आपके एग्जाम्पल सब जगह दिए हुए हैं, बिजनेस मैगजीन, मीडिया हाउसेस, और इधर आपके लो पावर हाईली इंटरेस्टेड पीपल, एम्प्लॉय, वेंडर, सप्लायर, लीगल एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा. लीगल एक्सपर्ट में सी आ गया. क्यों? अब आप ऑडिट पढ़े हुए हो तो मैं आपको बोल सकता हूं, कैन द ऑडिटर स्टॉप द बिजनेस और ही कैन ओनली रिपोर्ट ऑन द बिजनेस. And if he comes to know that there are certain actions or certain cases which are going to create a lot of problems, then he will become less interested or highly interested. As per the audit process, he will modify his audit procedures to dispel his suspicion that things are correct or not, and to the extent that whether it is going to impact his opinion or not. सही बोला मैंने? ऐसे ही होता ना ऑडिट की लैंग्वेज में. इसको स्टार लगा के रखना. इसके लिए नोट्स में मैंने आपको बना के दिया हुआ है, तो नोट्स में भी है ये. इसको स्टार लगा के रखना. मेंडलोज मैट्रिक्स को मैं अभी से बोल रहा हूँ. मेरी तरफ से क्या आप बड़ा खुश होते ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट. सर व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स? सर स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स मीन्स व्हाट? दोज थिंग्स विच विल कीप योर बिजनेस मूविंग. An important aspect of internal analysis assessing the current performance of business, and the drivers consider what differentiates an organization from its competitors. To assess the current performance of a business, and it's highly subjective based on management metrics and ways of doing business. It can be either profit से हो सकता है, purpose से हो सकता है, और management से हो सकता है. But in general, the key strategic drivers of an organization include what? Industry, customer, product, services and channels. Correct? चार चीजों से आप जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और ड्राइवर देखते हो कि इन चीजों से फर्क पड़ता है इसको. सर एनालाइजिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट्स. एनालाइजिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट्स, तो अब हम सबको देखेंगे या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे? सर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे. इसके अंदर आता है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग. एक ऐसा टूल है. इन स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग व्हाट यू ट्राई टू डू इज देखना, टोटल 3 क्वेश्चन है यहाँ पे. ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, और ये क्वेश्चन 3 है. Strategic group mapping is an analytical tool for comparing the market positions for each firm separately and grouping them into like positions when an industry has so many competitors. पहला. दूसरा, it consists of those rival firms with similar competitive approaches and positions in the market. Competitiveness can be measured on various grounds. वो various grounds कौन से हो सकते हैं? लोकल, नेशनल, हाई रेंज, लो रेंज, मीडियम रेंज एटसेट्रा. हाँ या ना? तो पहला स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग रेफर्स टू एन एनालिटिकल टूल फॉर कंपेयरिंग द वेरियस पोजीशंस ऑफ ईच फर्म एंड ग्रुपिंग देम इनटू सिमिलर पोजीशंस. सेकंड, स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोस कंपनीज व्हिच आर सिमिलर on few aspects, so then you try to compare them, like locally they all are together, nationally they are together, they have a high range, medium range, low range product, high low. आपको याद होगा मैंने कौन सी इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके आपको करवाया था ये, इफ यू रिमेंबर स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग. मैंने एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप बनवाया था हाई लो वाला, और प्राइस रेंज, मीडियम एंड हाई, इफ यू कैन रिमेंबर. सर इट वाज रिलेटेड टू confectionery, it was related to biscuits and bakery products, if you remember. So there were national players, there were local players. And after putting them into a particular strategic group, what did we do? We felt good, or we tried to analyze what will be their next move. Sir, we tried to analyze what will be their next move. Next move in what terms? कि ये ग्रो करेगा, रुकेगा, क्या होगा, all that things. Correct?
ओके वो कैसे बनता है सर? वी ड्रू अ ग्रुप, देन वी ट्राई टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस. सर इट वाज प्राइस रेंज हाई एंड लो, एंड देन लोकल एंड नेशनल. यू रिमेंबर दिस? ये याद आ रहा है? तो स्टेप वन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएट फर्म्स इन इंडस्ट्री. Variable includes price, quality range, high, medium, low, local, regional, national. Plot the firms on a two variable map using pair of these differentiating characteristics. Assign the firms that fall in about the same strategy space to the same strategic group and draw the circles around each strategic group, making the circles proportional to the size of groups respective share of total industry sales revenue. फिर हमने सबको बना के देखा था कि what is going to happen in each of the groups. सर हमसे एग्जाम में वो स्ट्रैटेजिक ग्रुप के बारे में कंस्ट्रक्ट करने को बोल सकते हैं क्या? इन्फॉर्मेशन दे के बोल सकते हैं प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजिक ग्रुप, तो आप बना सकते हो. आपको क्राइटेरिया पता है. अब मैंने आपके साथ हाई लो बनाया था तो 2x2 बनाया था, तो जरूरी है 2x2 बने? 2x3, 3x2, 4x3, 4x4, कोई सा भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? सर बन सकता है, करेक्ट. उप्स, सॉरी 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 सॉरी. फिर इसके बाद आती थी डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टेक्निक्स. सर डिफरेंट मार्केटिंग, अब ये सब वन लाइनर है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको मेरे को इसमें से. सोशल मार्केटिंग में द आइडिया इज टू सेल द प्रोडक्ट और टू प्रमोट अ सोशल कॉज. बताओ व्हाट इज द आइडिया? आइडिया इज टू सेल द प्रोडक्ट और प्रमोट अ सोशल कॉज. करेक्ट, सोशल कॉज. ऑगमेंट वर्ड का मतलब होता है बढ़ा कर देना, टू इंक्रीज एंड टू एनहांस. सो हियर यू आर मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब यू आर इंक्रीजिंग योर सेल्स और यू आर इंक्रीजिंग द बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन ऑगमेंटेड मार्केटिंग. So if I tell you I gave you an app, now I am giving you some more features in the app. So that app you already have because you are my customer. So some more features will be what? Social marketing, augmented marketing. Sir, it will be augmented marketing. Correct. Very good. Okay. Direct marketing means what? Straight away coming and saying ये ले लो. Naptol.com, टीवी क्या वो shop18.com. Remember when you are directly being sending and then asking to give a reply and create a response. So that is called direct marketing. You है ना that all that पहले मैं ऐसा सोता था फिर आया मेरे पास वो कौन सा वो आता था ना एक प्रोडक्ट, आई जस्ट फॉरगॉट. वो टीवीसी स्काई शॉप पे बहुत आता था. हाँ, स्लिम सोना बेल्ट टाइप की चीजें. पहले मैं परेशान रहता था, इधर उधर मुझे दर्द होता था, फिर मुझे मिला स्लिम सोना बेल्ट. हम्म. फिर एक वो आजकल इसी तरीके की मार्केटिंग में उन्होंने एक बड़ा फनी प्रोडक्ट चालू करा है, आदिवासी हेयर ऑयल. इफ यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट, सुना है क्या आदिवासी हेयर ऑयल? सदियों से चली आ रही, गंजों के सर पे बाल उगाना है, लोगों के जोड़ों का दर्द मिटाना है, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स अलग अलग तरीके से आते ही रहते हैं. चलो, कम टू द नेक्स्ट वन. सर रिलेशनशिप मार्केटिंग. इन दिस रिलेशनशिप मार्केटिंग व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तुम मेरे अच्छे कस्टमर हो, वेरी गुड वेरी गुड, या you will be having a relationship based on the amount of business which you do with the person. Silver membership, gold membership, platinum membership. Amazon Prime and Zomato Gold are an example of relationship marketing. Amazon Prime waves away your delivery charges. Zomato Gold gives you free delivery.
So it gives you a preferential treatment as compared to others. So that is called what? Relationship marketing. ध्यान से पढ़ के देखो. Strong value laden relationship. आया? Services marketing, when you try to bring the concepts of marketing into service sector. So that is called service marketing. Correct? So banking, insurance, all these things getting into marketing gamut, marketing daira. So that is services marketing. When you try to enhance, create and maintain the image of a particular person, enhance, create, maintain or change the attitude towards a particular person, that is called person marketing. Enhance, create, maintain and change the attitude towards a place is called place marketing. Enhance, create, maintain and change attitude towards an organization is called organization marketing. करेक्ट. देखो, प्लेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों पढ़ो. फर्स्ट और सेकंड हो जाए तो बोलो डन, तो मैं आगे लेके चलता हूं आपको फिर. प्लेस मार्केटिंग में अजन साहब, हिंदुस्तान का दिल देखो, मध्य प्रदेश देखो, 365 डेज ऑन अ हॉलीडे, गो गोवा, इनक्रेडिबल इंडिया, पधारो हमारा देश, राजस्थान, ऑल दीज थिंग्स आर प्लेस मार्केटिंग बेटा. अभी महाराष्ट्र टूरिज्म वाज गिविंग एडवर्टाइजमेंट, ऑल ऑफ देम वांट यू टू कम एंड एंजॉय एंड हैव फन एट देयर प्लेसेस, सो दे आर मार्केटिंग देयर प्लेस. Okay. Enlightened marketing, when you try to show the best long run performance of your marketing system. ये word याद रखना. Best long run performance of the marketing system. When you try to make people aware that we are a banker to every Indian, SBI. When you try to make people aware that we are a $10 billion enterprise. We have been with you every day. मैंने देश का नमक खाया है, टाटा नमक. So they try to enlighten you that we are so big, so great, we have not got so much of work which we have done. So that is what is enlightened marketing. Second, differential marketing. Differential marketing is when you try to sell the same product to different people at different places with different prices. Correct. So for example, if you go and sell things in a local rural market, your offer and scheme and discounts will be different. And if you sell the same product in a mall, your offer and schemes will be different. So that is called differential marketing. Then let's go to synchronic marketing. Synchronic marketing is coming from the word synchronize. Synchronize मतलब तालमेल बिठाना. So when you try to synchronize the low demand period and high demand period together, like when you give discounts in morning shows, when you give discounts in happy hours, so that the idle capacity of the restaurant and the theater may pick up and some people may come in. निब्बा और निब्बी जाते हैं ना पिक्चर देखने, सुबह वाले शो, सस्ते वाले शो, खाली तो पड़ा रहता है थिएटर. वो इसलिए जाते हैं कि थिएटर खाली पड़ा रहता है, और वो इसलिए बुलाते हैं कि इस बहाने कुछ कस्टमर्स आ जाए.
Correct. So that is synchronic marketing when they try to tell you that there is an offer, there is a buy one get one free from 3 to 7 in bars, buy one drink get one drink free, all those things. Shopping hours have got extra discounts on a Monday and Tuesday because usually Monday, Tuesday people don't go to supermarket to shopping. Saturday, Sunday they don't give too much discounts because people will anyway come to those places. Second last one, concentrated marketing. When you try to market only a single product and everything revolves around that. For example, if you have, let's say, Amul macho नहीं यहाँ ध्यान रखना, Amul milk products, Johnson and Johnson for baby products, correct? And then something called demarketing. So demarketing refers to when there is excess demand of your product and you really don't want the customers to leave. So you try to say that we don't have this product, we have got another product, you take that product from us. So that is called demarketing. So the aim is not to destroy the demand permanently, but to shift it to other products. Correct? ओके, यहाँ तक आ गए. अब आगे अपने चलेंगे चैनल्स से. तो अपन एक काम करते हैं, आज रुक जाते हैं. चैनल कोर कॉम्पिटेंस होने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका. तो लेट अस टेक दिस फर्दर टुमारो. आपको आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके आने होंगे एंड दोस प्रैक्टिस क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू योर चैप्टर 2 के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करके आना. ओके, मैं ये सारी स्लाइड्स एक बार आपका मेरा पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ये सारी स्लाइड्स में एक साथ दे दूंगा बिकॉज दिस स्लाइड्स आर स्टिल अंडर प्रिपरेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस. मैं उनको छांट रहा हूँ, कम कर रहा हूँ. सो आई विल पुट इट अक्रॉस ऑल ऑफ देम ऑन द ऐप. ओके, थैंक यू बच्चों. Recording stopped.